Hey you guys, welcome back to another vlog. So this vlog is a travel vlog. This time this is a travel vlog, and guess what? I'm traveling to my home back. It's been a long time that I've been staying in the Bangalore and studying here, being in being in isolation. Um, in this 1 month, uh, it's been a long time. Seriously, I mean, this 1.5 month feels like 1.5 year. Staying away from home and staying alone, it feels different. Uh, you know, Imagine a boy who never went out alone in his life ever, spent almost 2 months outside his home, away from his home, uh, in a strange city, in a strange town, and how does it feel? Well, if anyone else have been in my place, he would have been definitely, first of all, very scared, very nervous that how he will manage things out here. But I have already convinced myself, I've already made up my mind that if I will stay away from home, then I will have to manage everything. It might be I have to arrange everything alone, lonely. So that is what actually happened. Within few days, I have been in terrible situation. But now it's time to go back home, and I feel so happy that after a long time. I know already it's been 1.5 months, but it's seriously a long time being away from home for the first time. So it feels nice. So guys, my packaging is almost done, and now I am getting the feeling that I'm forgetting something. Whenever we go out somewhere, we have the feeling that something is missing, like something is there which we need to keep, but what is that? We don't realize at that point of time. So that is what feeling I'm getting right now, that something is there to pack in, but what is it? I seriously don't have any idea about it. But no problem, sooner the greater. I'll realize that what other stuffs are missing to pack this in. But for now, I'll pack up my bag, and after I'll have my dinner, I'll once again check up the stuffs, whether I'm forgetting something or not. Hey guys, so अभी अभी मेरी आँख खुली है. It's 5:45 a.m. और सच कहूँ तो रात में बिल्कुल नहीं सो पाया. I can't slept whole night. So the thing was that after 12:30 I was trying to sleep, but um, it was being very difficult to sleep. I don't know why. So at 2:30 a.m. I went out to have a glass of water, warm glass of water, but the warm water was not available in the purifier. So I went down. Uh, their purifier was working, and I got the warm water, and I drank turmeric water, mixing turmeric powder in it. So
I tried to sleep, but I think at 3:30, uh, I slept for half hours. But at that point of time, I felt like it's been 2 or 3 hours. So, guys, we have reached our train. I've got I've got the lower berth seat, window side, and it's still about 1 hour to leave the train. So when the train starts, I'll catch you next. Okay, so the journey has started from here, and it will take almost 33 hours to reach out there. I know it's been a complicated 1.5 months. What we experienced, what we faced, but the thing is, we don't know that what's going to happen to us in the very next moment. This is the thing that if you live at the present, you should live to the fullest. I mean, you shouldn't hesitate to live to the fullest. Okay, so it's been 3 o'clock already, and as you guys know that yesterday night I didn't had a great sleep, so I had a nice sleep today, and now I'm feeling much better, because earlier in the morning and at that time I was feeling a bit tired, a bit drowsy, but now I'm feeling all fresh. I had my lunch, and can't tell you how much is there. Like seriously, I just wanted to leave this jacket, but can't do right now. So what I did, I bought a bottle of cool drink. I know my throat is not so well, but from getting the relief of hotness, I had to do something. My throat is not yet so good condition, but still. अभी केवल कुछ ही घंटे हुए, बट काफ़ी लंबा सफ़र लग रहा है. मतलब ऐसा लग रहा है काफ़ी लंबा सफ़र अभी तय किए, बट अभी काफ़ी ज़्यादा लंबा सफ़र तय करना है. लाइक it's not been even 6 hours also, but it feels like it has been particularly a whole day went out like that only. So I thought this journey would be very much fun, but things doesn't go your way every time, and you never feel so much enjoyment and fun everywhere. So it depends place to place where you go, where explore. The kind of place you explore, that also depends on it. But still, I'm enjoying the view, and overall it's a good experience, like traveling alone and having some people to talk with. It's a good experience. That's the speciality of our India. You know, wherever we go, wherever we travel, we make some friends, we have some chit chat, conversation, and that doesn't make your journey bored.
this is what I was speaking about, the nature, the beauty of nature. See, all you need is a skill of observation, that how beautiful a nature can be, how pleasant it can be. I'll enjoy this beautiful scene and meet you guys in the next clip. Hey guys, good morning. It's the next morning and कल रात बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी थी. Even big blanket also didn't work well. But still, I hope my voice is clear to you guys. Within next hours, we will be reaching Odisha, and then in the evening we will reach my hometown. And see you in between till I reach my hometown. So it's been 9:30 AM और कुछ ही घंटों में हम राउरकेला पहुंचने वाले. उसके बाद शाम तक हम मेरे टाउन पहुंच जाएंगे. जितनी जल्दी ये जर्नी शुरू हुआ था उतनी जल्दी ये ख़त्म भी हो रहा है. It doesn't felt like it has been a long journey. It feels so short. Like yesterday only I caught up the train, and today I'm going to reach my home, and it feels so short period of time. ऐसा लगा ही नहीं कि लंबा जर्नी रहा है ये अभी तक. And within no time I realized that I'll be at my city, and then this vlog will be complete. I know this is the first ever travel vlog, but it has been a great experience overall for me. I mean, I learned many things during this journey. I realized many things. Many kind of thoughts came in my mind. I thought upon several things, like life is whole a journey only, where people come, people go, but they teach you some kind of lesson every moment, and that is the speciality of that moment. You realize, you learn, and you move on. बिरयानी अंडा बिरयानी वेज बिरयानी अंडा बिरयानी डबल अंडा बिरयानी खाना बिरयानी. अरे ओके गाइस, सो हम राउरकेला पहुंचने वाले हैं. हम अभी उड़ीसा में, और अगले आई थिंक 2.5 घंटे में हम रांची पहुंच जाएंगे. सो गाइस, वन ऑफ दोज थिंग्स आई रियलाइज कि हमारे सफ़र में अब तक मैंने ये नोटिस किया कि जो एरिया हमने ट्रैवल किया अभी तक, दोज एरियाज, दोज अंडर डेवलप्ड एरियाज, दे नीड टू बी वर्कड अपॉन. लाइक ऐसे अंडर डेवलप्ड एरियाज़ जहाँ पे सरकार को काम करने की ज़रूरत है, लाइक जहाँ पे डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है, और यहाँ पे बहुत अच्छे रिसोर्सेज है. लाइक आपको तो पता ही है कि उड़ीसा, झारखंड, बिहार, ये सब में रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है. लेकिन वही बात है कि जो ग्राउंड लेवल से जो दिक्कत होता है ना शुरू, कि एक आम जनता का प्रॉब्लम, जिसके पास ड्यूटी रहता है वो चीज़ सरकार तक पहुंचाने का, वो चीज़ नहीं हो पाता. बीच में जो रोड़ा आ जाता है, वो ब्राइबरी, वो करप्शन, उसके वजह से इतने बढ़िया जो यहाँ पे लैंड है, इतना बढ़िया स्पेस है कि यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री होगा. जो बंजर ज़मीन है उस पर, उसकी बात कर रहा हूँ. यहाँ पे बंजर ज़मीन पूरा मतलब भरा हुआ है. ऐसे जगह पे एनिमल हस्बेंड्री हो सकता है, आपका गोट हस्बेंड्री, डेयरी प्रोडक्ट्स
की फैक्ट्री लग सकती है. सो देयर आर मेनी थिंग्स टू डू हियर टू डेवलप दीज एरियाज़. बट द मेन थिंग इज़ कि सरकार तक ये बात पहुंचाएगा कौन. बिकॉज जो यहाँ के इन जनरल जो सरकार है, वो जो मेन स्टेट गवर्नमेंट है, वो चीज़ एक आम जनता की तरह नहीं सोचती है. दे डू नॉट ट्रैवल लाइक अस इन अ ट्रेन. Obviously they do travel in a flight, and that is why they do not realize that what is there needed to be done in matter of developing their area. अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ के सीएम है, ऑब्वियसली सीएम साहब हमारी तरह ट्रेन में तो सफ़र करेंगे नहीं, करते नहीं है, वो फ्लाइट से ट्रैवल करते, तो उन्हें पता नहीं चल पाता कि एक आम आदमी की बेसिक प्रॉब्लम क्या है. उसका सल्यूशन भी बहुत सिंपल है उन प्रॉब्लम्स का, लेकिन वो जो सल्यूशन है, उसका काम जिन्हें दिया गया सरकार तक पहुंचाने का, तो वही लोग इस चीज़ में गड़बड़ करते हैं. और इसी वजह से जो हमारी जो मेन गवर्नमेंट है, उन तक एक आम जनता की शिकायत नहीं पहुंच पाती. जो सल्यूशन हम आसानी से लागू कर सकते हैं, वो चीज़ नहीं हो पाता. सो देयर इज़ नीडेड टू डू समथिंग. सो ये सब चीज़ें बेसिक लेवल से शुरू होती है, बेसिक ग्राउंड लेवल से. जैसे ग्राम पंचायत ही को अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे ले लें, तो यू सी दैट एट द विलेज एरिया, एट द विलेज लेवल, at Gram Panchayat level, there are authorities whose duty is to take up the problems of their citizens and take it to the main center, to the main authority. And if they do not do their duty, then the authority does not come to know about what is their problem, what is the solution needed to do. But एज द व्यू ऑफ अ कॉमन सिटीज़न, एक आम जनता के नज़रिए से हम जो प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, जैसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़रूरत है. दे नीडेड टू गेट स्किल्ड, बिकॉज इफ़ दे हैव स्किल दे कैन वर्क इन एनी फील्ड. अगर उनके पास स्किल होता है तो वो किसी भी फील्ड में आराम से काम कर सकते हैं, अपना घर चला सकते हैं. उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, अपने स्टेट से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी किसी दूसरे स्टेट को डेवलप करने के लिए. हमारे यहाँ जो वर्कर्स हैं, हमारे यहाँ जो काम करने वाले, वो इतने मेहनती कि वो रात भर काम कर सकते हैं, काम करना चाहते हैं और करते भी है, लेकिन दूसरे स्टेट में, अपने स्टेट में नहीं जहाँ वो रहते हैं. अगर वो अपने स्टेट में रह के, उनका अगर अपना स्टेट उन्हें ये चीज़ प्रोवाइड करे, ये स्किल, ये जो सेंटर एक होता है कि उन्हें स्किल प्रोवाइड किया जाए, बेसिक स्किल्स, जिसके थ्रू वो अपना खुद का कुछ शुरू कर सके. क्योंकि आखिर में हम सरकार पे भरोसा नहीं रख सकते. वी कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट होल टाइम, दैट गवर्नमेंट विल गिव अस द अपॉर्चुनिटी टू डू जॉब्स. वी हैव टू डू समथिंग ऑफ आवरसेल्फ, एंड फॉर दैट स्किल इज़ वेरी एसेंशियल. अरे वाह वाह भाई वाह, क्या नज़ारा है यहाँ का. I mean seriously man, this place is worth it to visit. I mean seriously, you don't need to go outside for visiting. कहीं घूमना है तो आपको शिमला वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है. यही सब जो जगह है ना, कि ये जंगल है, इलाका है, खाई है, यहीं पे लोग रह रहे हैं. आप लोग को यकीन नहीं हो कि यहाँ पे लोग रह रहे हैं, घर बनाए हुए रह रहे हैं, अपना ये लोग धान उगा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, आराम से रह रहे हैं. देखिए 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 भाई साहब, कितना बढ़िया नज़ारा है. मतलब जंगल के बीच में, पहाड़ों के बीच में, प्रकृति के बीच में जो ये लोग रह रहे हैं ना, बहुत ही सुंदर नज़ारा है. आप सबको आना चाहिए. मतलब जो आप लोग जाते हैं देश विदेश घूमने, उससे अच्छा जगह यही है कि हमारे आसपास ही ये सब जगह, बट हमने कभी एक्सप्लोर नहीं किया. तो आप सबको भी ये सब जगह एक्सप्लोर करना चाहिए. बहुत ही सुंदर जगह भाई, वाह 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 वाह. ये सब जगह अगर आपने नहीं घूमा तो आपने आखिर घूमा ही क्या. ये सब जो जंगल है, आप जो टीवी सीरियल्स में देखते हैं, ये हकीकत में मैं देख रहा हूँ.
मतलब गाइस सीरियसली ये जंगल बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। ऐसे कई सारी जगह है जहाँ पे आपको लोग मिलेंगे, घर बनाया हुआ जिन्होंने, जिनका रहने का व्यवस्था है। बहुत सुंदर जगह है ये। आप सबको मतलब कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कभी कभी लगता है कि यहीं पे, कभी कभी हमें लगता है कि हम यही जगह घूमें, यही जगह रहें। और भाई देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, कितना बढ़िया नज़ारा है यहाँ का। ऐसी जगह को अगर आपने एक्सप्लोर नहीं किया ना, तो भाई साहब कसम से कह रहा हूँ कि आपने कुछ नहीं देखा है लाइफ में। इतना सुंदर नज़ारा, प्रकृति के बीच नेचर का ये सुंदर सा नज़ारा, भाई मैं तो भाई भाव विभोर हो गया सच में। इतना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि इतना सुंदर जंगल है, इतना बढ़िया जगह है कि आपको शिमला, कश्मीर ये सब जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए मैं ऐसा नहीं कर गया मत जाइए, वहाँ जाइए घूमिए, बट ये सब जो अनएक्सप्लोर्ड जगह है ना, आपको ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे, ज़रूर से ज़रूर आना चाहिए। क्योंकि ये जो नेचर है ना बहुत ही खूबसूरत है। और जैसे हमने कई जगह पे हम लोगों ने मुद्दा उठाया कि कैसे हम लोगों की मदद कर सकते हैं, कैसे हम लोग ये सल्यूशन निकाल सकते हैं। कई मुद्दों पे हमने बात की। तो यही फ़ायदा होता है कि जब आप जर्नी पे जाते तो आपको अलग अलग लोग मिलते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस आपको होता है। और ये एक्सपीरियंस आपको ज़िंदगी भर के लिए याद रहेगा। लाइक मुझे अभी भी याद है कि जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था फर्स्ट टाइम ट्रेन में ट्रैवल करने का अकेले, बेंगलोर जब मैं जा रहा था, तब एक और को पैसेंजर थे, उनके साथ भी कुछ इस तरीके से बातें हुई। इनका भी अपना ओपिनियन है, अपना नॉलेज है। तो दादा बताइए कैसा रहा आपका अब तक ये एक्सपीरियंस, ये जर्नी का? बहुत अच्छा सर। और एक्चुअली में ऐसा है कि जब हम लोग जिस चीज़ को देख रहे हैं अपनी आँखों से, अपने नंगे आँखों से, तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे से हम लोग गांव को विकास कर सके, डेवलप कर सके। और मैं इस जगह पर रह के ये चीज़ लगा दूँ, वो चीज़ लगा दूँ, मतलब तरह तरह के मतलब माइंड में सेटअप होते रहे हैं। और हम लोग टॉकिंग आपस में करते रह रहे हैं। एक हमारे सर हैं, वो इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और हम लोग टॉकिंग कर रहे हैं आपस में भी कि इस जगह पर देखिए सर ऐसा होगा तो ये चीज़ हम लोग कर देते हैं। हमारे पास पैसे होता है, हमारे पास नॉलेज बुद्धि है, लेकिन इस जगह पर हम नहीं हैं। ये जगह पर होते तो ये चीज़ उद्योग लगा देते, ऐसे करते और लोगों को रोज़गार देते और लोग हमें पहचानते, जानते, मेरी नाम होता। और मैं मतलब सोशल वर्क में हम लोग को सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने का और एक्सप्लेन करने की मतलब ललायत है हम लोग, एक तरह से कहा जाए तो। अब मैं आपको कहना चाहता हूँ कि दादा लोगों को स्किल्स सिखाते हैं, लोगों को उनकी स्किल्स बढ़ाते हैं, सिखाते हैं कि कैसे अपनी स्किल्स को इस्तेमाल किया जाए। इनका अपना एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे ये लोगों को, इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक टीम है जो हर साल नए नए बैचेस को उनके स्किल्स सिखाती है, ताकि उन्हें गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, वो लोग खुद अपने पैरों पे खड़े हो सके। और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि आप लोगों को अपने दम पे खड़ा होना सिखा रहे हैं। सो दादा आई सैल्यूट यू यार, आई मीन सीरियसली। थैंक यू सर, थैंक यू। मतलब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को स्किल सिखा रहे हैं, लोगों को उनके पैरों पे खड़ा कर रहे हैं। जी जी। आई मीन ये चीज़ ऐसी है कि जिसका डिमांड कभी कम नहीं होने वाला। कंपनीज ऐसी स्किल्स की ज़रूरत है इन कंपनीज़ को। सो ऐसी चीज़ें खासकर सिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मुश्किल काम है किसी को खुद सिखाना। ऐसे सर एक्चुअली मैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा नाम राजेंद्र पंडित है और मैं एक ट्रेनर हूँ। और मैं लोगों को चाहता हूँ कि 18 से 35 वर्ष के उम्र के जितनी भी BPL से नीचे वर्ग के लोग हैं, जो अनाथ हैं या और भी किस तरीके से मजबूरन बस उनकी प्रॉब्लम है, वैसे लोगों को हमको सिखाने का और जॉब, रोज़गार दिलाने का बहुत मुझे शौक है। बिल्कुल। और मैं चाहता हूँ लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्किल्ड करूँ, हुनरमंद बनाऊँ, ताकि लोग जागरूक हो और लोग सीख करके अपना पैरों पे, अपने दम पे खड़ा हों। वो पुण्य मुझे मिलता है ना, वो सुकून मिलता है ना, ये सबसे बड़ी खुशी वही मुझे है। ऐसे आपने एकदम मेरे दिल की बात कह दी कि जो काम हम, जो सेटिस्फैक्शन हमें लोगों की मदद करने से मिलता है, जी, उनको डिपेंड, अपने ऊपर डिपेंड करने पे आप जब बनाते तो उसकी अलग ही सेटिस्फैक्शन होता है। जी, जब आप कुछ लोगों को सिखा रहे हैं और वो लोग अपने दम पे कुछ कर रहे हैं, अपने कुछ बन गए, तो वो चीज़ अपने आप में एक सेटिस्फैक्शन देती है। बहुत सारे ऐसे ही एम्प्लॉयर हैं
कि जो उनको मैंने सिखाया और वो अपने पैरों पे दम पे खड़ा होकर वो लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं और साथ साथ वो अपने घर को 10 फैमिली को भी भोजन अच्छा से चला रहे हैं। यही मेरी सबसे बड़ी खुशी और साथ में अपने जो राज्य जहाँ वो रहते हैं उस राज्य का और डेवलपमेंट में अपना जी, जी। वो रोल प्ले कर रहे हैं, जी। ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। जी। तो इससे बेटर क्या ही हो सकता है कि आप नए स्किल सीखें। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्सपीरियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और एक्सपीरियंस तभी को जब आप कुछ सीखना चाहेंगे। जी। तो सर वही चीज़ करते हैं कि वो लोगों को एक्सपीरियंस देते हैं, लोगों को सिखाते हैं कि वो कैसे स्किल्ड बने, कैसे अपने काम में स्किल लाए। तो ये चीज़ मतलब जो है ना भाई, मैं स्किल्ड काफ़ी होने के admire कारण करता हूँ। साथ साथ अपने पैरों पे अपने दम पे वो खड़ा हो जाए, एक दूसरे पे आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूँ। मेरे को ये बिल्कुल। सपना है सर। मैं Self चाहता हूँ reliant। कि हाँ, Self सेल्फ reliant India। डिपेंडेंट होना चाहता Yeah। है। लोगों की अपने आप को अपने एक स्टेट से, एक गांव से बाहर नहीं जाना पड़े। और मेरा जो ट्रेड है ना, वो खुद का ऐसा ट्रेड है कि सर गारमेंट्स इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। अगर जो सिलाई मशीन सिखाता हूँ, सिलाई मशीन का ही मास्टर हूँ मैं, अगर जो उसको उसमें स्किल्ड कर देता हूँ ना, तो वो अपने 6 महीना साल भर के बाद वो सीख करके बाहर से भी एक्सपीरियंस और ले करके इंडस्ट्री से अपने खुद को घर में 1-2-4 मशीन रख करके अपने आप को पैरों पे अपना भी करता है और साथ साथ दूसरे लोगों को भी रोजगार देता है। यही सबसे बड़ी खुशी है और मैं चाहता हूँ कि इससे और ज़्यादा विकास हो और लोग को ज़्यादा जागरूक फैलाए। और मेरा ये सोच है, मेरा लक्ष्य है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी सोच है सर आपकी। मतलब जो आप कर रहे हैं, जो आप लोगों की टीम कर रही है, ये बहुत ही अच्छा काम है। आई मीन सीरियसली, लोगों को डिपेंड करना अपने ऊपर, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देती है कि आप लोगों की मदद करें इतनी इस तरीके से, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो ये चीज़ ऐसे ही होता है, बदलाव ऐसे ही आता है छोटे छोटे स्टेप से। आप शुरू ऐसे ही करेंगे और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे और साथ में अपने स्टेट, अपने कंट्री की भी ऐसे ही आप सर्विस देंगे तो वो कंट्री काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। और जहाँ आप बाहर जाते हैं, जहाँ बाहर की कंपनीज आपको हायर करती है, फिर एक दिन आएगा कि आपकी ऐसी कंपनी होगी जो बाहर जाके दूसरे लोगों को हायर करेगी। ये ऐसा रेवोल्यूशन आ सकता है और आएगा, ज़रूर आएगा। बिकॉज सर के जैसे जो भी टीचर्स हैं जो सिखाते हैं स्किल्स, वो आगे बहुत कम आने वाले हैं। सो जो भी आपके पास स्किल है, सर का कहने का यही मतलब है कि जो भी आपके पास स्किल है आप उसको बढ़ावा दें, नए नए स्किल सीखें और आत्मनिर्भर बने। बी सेल्फ रिलायंट, किसी पे डिपेंडेंट आपको होने की ज़रूरत नहीं है। सो इस जर्नी में मैंने काफ़ी कुछ सीखा और काफ़ी कुछ नया मैंने जाना है और आगे भी ये लाइफ भी ऐसे ही कि आगे जर्नी में हमें और भी ऐसे लोग मिलेंगे, नए नए लोग, अच्छे दोस्त मिलेंगे जो हमें काफ़ी कुछ सिखा जाएंगे, काफ़ी कुछ नॉलेज देंगे। सो मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि हमेशा सोचें, ज़रूर इस सब बारे में सोचें कि आप कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं, कैसे आप लोगों के काम आ सकते हैं, कि कैसे आप उनकी मदद करें। ये चीज़ आप ज़रूर सोचिएगा कि आप कैसे उस चीज़ का सल्यूशन निकाल सकते हैं जो एक सरकार नहीं निकाल सकती। कैसे आप उस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, ज़रूर सोचिएगा इसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक्चुअली मैं ऐसे, मेरी कंपनी का नाम है सर, ऑर्गेनाइजेशन का ये शाही स्किल्स है। और अभी मैं फ़िलहाल 17 तारीख को, 15 तारीख को, मैंने 15 जनवरी को रांची हटिया जंक्शन से 45 कैंडिडेट को लेकर के ही गया था और बंगलोर में ही उन लोगों को ज्वाइनिंग करवा करके और वहाँ पे सारे कुछ उन लोगों को कर करके ही वापस लौट रहा हूँ। और फिर बैचेस तैयार होंगे, फिर उस तरीक़ा से, फिर वैसे मतलब एक घड़ी की सुइयों की जैसे चलते रहेगा। ये मतलब ऐसे ही चलते रहेगा। जी जी, चलते रहता है। बहुत और बढ़िया। मैं चाहता हूँ कि इतने नहीं और भी लोग, जो कोई भी अगर जो अदर भी संस्था से, बिना संस्था से जुड़े हुए भी लोग बोलते हैं कि हमें रोजगार चाहिए, हमें 10,000 की, 5,000 की, हम ये काम करना चाहते हैं, या जो भी ट्रेड में करना चाहता है, मेरे को जितना नॉलेज है, मेरा कुछ जितना भी जानकारी है, अप्रोच है, मैं लगवा देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं 100% गारंटी। वाह भाई वाह, बहुत अगर जो कोई बढ़िया भी बात है। बेकार है, बेरोजगार है, अगर जो बोले कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर, मैं तुरंत उसको करवा दूँ। इतना कॉन्टैक्ट बना लिया और उतना जानकारी भी है और काफ़ी दिनों से मैं इसमें स्ट्रगल कर रहा हूँ, भी वर्क कर रहा हूँ, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं दादा, आपका ये स्ट्रगल जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मैं यही दुआ करता हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं, आप उसमें सक्सेस आपको हमेशा मिलती रहे, आप लोगों को ऐसे सिखाते रहे, आप खुद आगे बहुत बढ़े। बिल्कुल। मेरी यही कामना है और हम लोगों को जितना हो सके उतना उनकी मदद कर सके, उनके काम आ सके। बिल्कुल। और ये जर्नी मेरे लिए बहुत अच्छी रही है, लाइक सीरियसली, कि बहुत कुछ हमें जानने को मिला, बहुत सीखे हम और आगे भी बहुत कुछ सीखना है। तो इस व्लॉग में
फिलहाल तो यही आपसे कहना चाहूँगा कि मतलब जो भी आप कर रहे हैं पूरे डेडिकेशन के साथ करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक्चुअली ऐसा होता है ना कि जो मेरा एसेट है सिखाने का, अगर जो मान के चलिए कि एक एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ कि मुझे सिखाना है पहला क्लास की पढ़ाई, तो मैं दूसरी क्लास तक पढ़ाई सिखाने का वादा करता हूँ और सिखाता भी हूँ, इसलिए कि मैं पहला क्लास की पढ़ाई पढ़ाना है, सिखाना है, उसकी दूसरी क्लास तक पढ़ा दूँ, सिखा दूँ, कम पर नाम तो लेगा ना मेरा, कम पर मेरा तो हुनर को सीख लेगा और अच्छे तरीक़ा से जान लेंगे, तो वो कम पर नाम तो लेगा ना। जितने लोग सीखेंगे तो ये सर को सिखाना है कखा गगा सिखा दिया चाचा जाजा, तो वो तो सबसे बड़ी यही चीज़ हमारा मिलता है सर। और उन लोग से सारी बातें जब आती हैं उनकी पेरेंट्स लोग से, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जो इस पेरेंट्स को भोजन नहीं मिल रहा है, सही ढंग से कपड़ा नहीं मिल रहा है, वस्त्र नहीं मिल रहा है, रहने का दिक्कत है, खाने का दिक्कत है, वैसे घर से एम्प्लॉय को, वैसे घर से लोगों को ला करके और ले जाकर रोजगार लगवाना, ये बहुत बड़ी अपने आप को सर ये है। सच और जब में, वो हाँ। संघर्ष करके और पैसे कमा के घर में जब देता है ना, उसकी जो पेरेंट्स जो हमारे जो फीडबैक देते हैं, वो बहुत बड़ी हमारा दिल खुशी होता है सर। इससे बड़ी और क्या पुण्य होगा। तो मतलब- एक तरह से लगता है कि बहुत बड़ी हम पुण्य के काम कर रहा हूँ और मुझे ये करना चाहिए और मैं करता रहूँगा सदैव, ऐसी अगर जो सहायता सहयोग मिलता रहे लोगों को। बहुत बढ़िया है सर, आप जो कर रहे हैं आप करते रहे आगे, और इस तरक्की के आपको खूब तरक्की मिले आपके लाइफ में। और कोई पैसा नहीं सर, कोई पैसा नहीं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में ये सुविधा है सर। फ्री ऑफ कॉस्ट हाँ, में free आपको of ये cost, सेटिस्फैक्शन मिलता कोई है। पैसा नहीं। और और लय से जो भी कैंडिडेट आते हैं हाँ। मुझे लर्नर, उससे कोई पैसा नहीं, उसको 3 महीने तक और रहने खाने का भी सुविधा हम लोग देते हैं और साथ साथ ले जाके वहाँ पे सारे कुछ प्रोवाइड भी करवाते हैं। उनको सब वहाँ कुछ तक सेटल कोई पैसा करा नहीं, के सारा उनको settle उनकी करा। ट्रेनिंग से लेके जी, जी, उन्हें उस जॉब तक सेटल करने हाँ, तक हाँ। ये हमेशा उनके साथ रहते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। ये जिस तरीके से लोगों को मदद कर रहे हैं ना, मतलब ये सच में बहुत ही अप्रिशिएबल है। आई रियली सल्यूट दैट सर। you, मतलब मतलब सीरियसली आज के टाइम में किसी के लिए इतना बड़ा सहारा बनना, मतलब कोरोना जैसे काल में जी। जब लोग अपनी नौकरियां खो रहे हैं, लोग जी, जी। अपने जॉब्स खो रहे हैं, आप उनको मदद करने की, वो अपने ऊपर डिपेंडेंट रहे, अपने ऊपर वो खुद से कुछ कर सके, जी जी ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आई मीन सीरियसली ये एक गजब का तरीका है लोगों को जागरूक करने का कि आप आगे बढ़िए, आप कोशिश करिए कम से कम, आप शुरुआत। हाँ एक्चुअली सर कोरोना काल में ऐसा हुआ कि कंपनियों ये स्किल सारे बंद हो गए हैं, सारे बाजार मार्केट सारे बंद हो गए, लेकिन सर कोरोना काल में भी हम वर्कर को जॉब पर भेजा है, फ्लाइट का टिकट ले करके भेजा है। अब बताइए, फ्लाइट की टिकट कंपनी ही करवाई, हमें इधर से सेंड करना है। आप ही बताइए, जहाँ पे लेबर मजदूर जो भी है उन बेचारों को जहाँ घर जाना मुश्किल हो रहा था, तो ऐसे टाइम में इनके कंपनीज़ ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इतना कुछ किया है, जो सीख रहे हैं, जिन्होंने सीखा है इनके कंपनी में रह के, उनके लिए इतना कुछ किया है इन्होंने कोरोना काल में। तो आप सोच ही सकते हैं कि ये जो इनकी इंस्टीट्यूशन है, ये इनफैक्ट सिर्फ ये इंस्टीट्यूशन ही बल्कि ऐसी कई सारी ब्रांचेस है, कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो आपको स्किल के साथ साथ आपको वो चीज़ प्रोवाइड करें कि आप अपने दम पे खड़े होकर लोगों की मदद कर सके, लोगों का साथ दे सके, उनके लिए कुछ कर सके। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है सीरियसली। जी जी बिल्कुल बिल्कुल तो सर। धन्यवाद सर कि आपने हमारे साथ ये जो जर्नी स्पेंड किया, हमें इतना कुछ नॉलेज दिया, इतना कुछ शेयर किया, आपने एक्सप्रेशन अपना एक्सप्रेस किया। मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस जर्नी में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे लोगों की मदद करते रहेंगे और हम भी लोगों से ऐसे कुछ सब कुछ सीखते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, धन्यवाद धन्यवाद सर। अब मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि आप एक्सप्लोर ज़रूर कीजिए, और जितना हो सके उतना ज़्यादा एक्सप्लोर कीजिए, और जितना हो सके उतनी खुशियाँ बांटें, लोगों की मदद करें, और लोगों को हो सके तो उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है, और इससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आपको कभी नहीं मिल सके जब आप किसी की मदद करेंगे, किसी के काम आएंगे। ये अपने आप में एक सुकून देता है। तो अब हम लोग यूँ तो हम लोग की ट्रेन डिले हो गई है 1 घंटा 15 मिनट जैसा, तो टाइम लगेगा जाने में। तो जब पहुँचते हैं फिर उसके बाद हम आपको कैचअप करते हैं। ओके, सो आई रीच्ड हियर and now I'm going to take my auto, and then after that I will be at my home. So मतलब crowd here, crowded place. I'll see you guys outside.
is that no one came here to pick up me, but still फिलहाल जाते हैं और हर पास कैसा किया जाएगा तब तक मिलते घर पे नेक्स्ट वीडियो में. So guys, I finally reached my hometown. As you can see that it's been a great relief when you return back to your home where you took birth, where you grew up. और इतने समय बाद एक स्ट्रेंज सिटी से वापस अपने घर आना, इट हैज़ बीन ऑलवेज ग्रेट फीलिंग. बट माइंड यू, sooner the greater, but still it has been a great journey for me. Like from the very beginning when I first time went Bangalore, and then after that I have been experiencing a lot of things. So see, this is the thing, that when you go outside you experience a lot of things, and the great relief is that when you return home, all you need is just your family, the family whom you spent the most of your life. So I'll you catch up with my mom's expression, how she will react when she will see me after a long time. So catch you up there. So here I am, and here's my और टेम्पो रजाई इसी में. प्रणाम. चल खुश रह. उसका वीडियो बना रहा. चल चलो चलो. So here is my she is my mother, रखना. dad. Okay guys, so I have finally reached my home. It's been a long journey, बहुत ही लंबा सफ़र रहा है, and it's been quite beautiful moments there. It was like meeting new people, getting to know their experiences, sharing the experiences. It's been a great fun, and really this journey has taught me a lot. I hope so that this thing keeps happening, that and in every aspect of life I get to learn new things from new people, from different people. So this is it. This vlog ends here only, and if you really like this video, then if you really like this journey, then please do like and share as much as you can among your family and friends. And if you haven't subscribed this channel, then please do it, and I will see you in the next video. Till then, take care, stay safe, and goodbye. Peace.